Commentary Cafe and this is Dumb Ways to Live का episode 3 because ये वीडियो पूरा emotionally driven होने वाला है और एक रैंकिंग सेशन होने वाला है। So yeah, we are going to talk about why women today do not want to get married. So वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता दें why I am the most eligible person to make this video. That is because I have an elder sister जो मेरे से 7 साल बड़ी है and it's difficult for my sister to decide कि वो शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है और इस चीज़ को लेके हमारे घर में बहुत discussions होते हैं. Also why I am eligible to make this video is because I know women who are working out there, students हैं. I myself have opinion about it. I will tell you my own opinion at the end of the video. So yeah. Let's get started. ये वीडियो एक्चुअली अलाइन करेगा अरेंज मैरिजेस से और पेट्रियार्की से बहुत ज़्यादा. So when we talk about why women do not want to get married, it's not a huge reason. छोटे छोटे रीजन हैं जो साथ में मिलके पूरा समंदर बना रहे हैं. To make this video really accurate, I asked this question to my female friends who are working, who are students. So उनका अपना opinion I am going to put in this video so that you get what women actually think. Now ये जो opinion है ये थोड़े बहुत similar ही हैं. Everybody, हर किसी के opinion में one thing is common and that is freedom. हम as women हम लोग को इतना नीचे गिराया गया है that we think that job and getting financially independent is the only chance for us to get the absolute freedom. So about what you asked, that why do I think nowadays women do not want to get married? तो मेरे हिसाब से इसके दो broadly reasons हो सकते हैं. Now again, this is just entirely my opinion. First reason is that we have come out of all the old narratives set by the society. So let's take an example. If you're a girl, let's say you're born in a family where the female figure that you're looking at is your mother. तो आप ये देखते हैं हमेशा कि आपकी जो मम्मी है, for example, she is not working woman, she is a housewife, right? तो आप हमेशा से ये नोटिस करते हैं कि आपकी मम्मी से सारे घर के काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो करें. Right, she is expected to do all the household stuff, take care of the family members, and it is considered her primary duty, which is probably true. Now, let's take an example where you are born in a family and the female figure that you look at is your mother and she is a working woman. Now, in most of the families that I have seen and I have noticed, आप कभी भी ये नहीं सुनोगे कि हमारी बहू जो है वो एक कॉर्पोरेट में XYZ पोस्ट पे काम करती है और बस हम उससे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी जॉब में अच्छा करे. नेवर, आई मीन नेवर से नेवर, बट या मोस्टली ऐसा नहीं होता है. व्हाट शी इज एक्सपेक्टेड इज कि वो अपने जॉब में जो कर रही है दैट इज सेकेंडरी एंड जो उसका प्राइमरी रोल होना चाहिए वो घर में काम करना ही होना चाहिए. नाउ अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, आई एम नॉट ओवर जनरलाइजिंग दिस, बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग रियली गुड इन योर करियर, it won't be acknowledged if you are not good in your household stuff, if you're not able to take care of your family. This could be one of the reasons that it might sound very overwhelming for people. For me myself, it does really sound very overwhelming and very weird. I think जब वो वाले अंकल्स आते थे ना जो बोलते थे कि लड़कियों को इतना ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, उनकी बुद्धि बढ़ जाती है. I think वो अंकल सही बोलते थे क्योंकि देखो अब क्योंकि हम अपने शहर से बाहर निकल के किसी नए शहर में जाके पढ़ते हैं, एक लाइफ जीते हैं, एक इंडिपेंडेंट फील करते हैं, तो हमको चीजें ज्यादा समझ में आती है. इट इज मोर अबाउट इंडिपेंडेंस देन अबाउट मैरिज क्योंकि मोस्टली लड़कियों को यही लगता है कि शादी करने के बाद उनके इंडिपेंडेंस का कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिजेस स्पेसिफिकली क्योंकि अभी हम लोग जनरेशन थोड़ा बहुत इवॉल्व हो गया है, बट अरेंज मैरिजेस आज के भी टाइम पे बहुत लिमिटेड हैं. मतलब इवन टुडे इन अरेंज मैरिजेस आधी चीजें तो झूठी बताई जाती है, जैसे लड़के का हाइट, लड़के का सैलरी. तो अरेंज मैरिज इज लाइक अ सरप्राइज पैकेट. अब वो पैकेट
अगर कोई लड़की खोलती है तो अंदर कुछ बुरा भी निकल सकता है और कुछ अच्छा भी निकल सकता है। इट्स अ रिस्क, और ये ऐसा वैसा रिस्क नहीं है कि ले लिए तो ले लिए, इट्स अ रिस्क ऑफ लाइफ टाइम। अरेंज मैरिजेस में मोस्टली लोग, अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से आता है देन वेरी वेल फॉर यू कि आपकी फैमिली आपके लिए स्टैंड करेगी, पर आज भी इंडिया में मोस्टली फैमिलीज ऐसी हैं जो ये मानते हैं कि शादी एक सामाजिक बंधन है, और अगर आप इस शादी के लिए हाँ बोल रहे हो तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू निभा पाओ इट, एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर women. Well, I don't know about other women. I do want to marry, but there are variables around this topic because it's not just about Indian women, it's about women in particular, okay, regardless of the region. But in the context of Indian women, if I tell you why don't they want to get married, one major reason is the generational trauma that has been passed on to generations and generations that our mothers have faced, their mothers had faced, and they keep on passing that to their daughters that you have to bear this. तो एक वो क्रिएट हो गया है लड़कियों के दिमाग में कि एक बार अगर शादी हो गई तो वी आर सपोज्ड टू बेयर व्हाटएवर दे पुट इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, व्हाटएवर इज बीइंग ब्रॉट टू द टेबल वी हैव टू ईट इट, ठीक है। एंड वो एक डर पैदा करता है ऑब्वियसली लड़की के दिमाग में कि आई विल बी बाउंड, आई विल बी केज्ड, दे डोंट फील सिक्योर, दे वांट टू लिव ऑन देयर ओन टर्म्स, कि शादी से पहले घर पे बंद थे, कोई फ्रीडम नहीं थी, माँ बोलती है शादी के बाद जो मर्जी कर लेना, बट शादी के बाद आप जो मर्जी नहीं कर सकते बिकॉज देन यू हैव अनदर पर्सन दैट यू बिलोंग टू। One thing that I have noticed around me is the Bahu treatment and the Damat treatment. This is my own theory We need to understand that this is a war between a healed woman versus Unhealed society. समाज के ठेकेदार आज भी बैठे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एक औरत की मर्यादा कितनी होनी चाहिए, उसको क्या पहनना चाहिए, उसको कैसे बात करना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये बात सही नहीं है, बट So your question was about why Indian women don't want to marry. It's mainly because वो अपने freedom को खो देती हैं। First of all, उनको एक set of responsibilities लेनी पड़ती हैं for the guy and the guy's family. Responsibility in terms of caretaking and you know एकदम खाना provide करना, ये करना वो करना, which they normally don't do in their own घर। अब वो लोग अपने घर में एक काफी प्यार भरी environment से आते हैं and suddenly they have to shift. Suddenly they have to shift from being the घर की प्यारी बेटी to being the घर की बहू। It's about more of like how bahuranis are treated in their ससुराल। अब ससुराल जाके उन लोगों को काफी ताना मारा जाता है for their own practices। मान लो अगर उनको कुछ काम करना है, या मान लो कि शादी के बाद लड़की को काम करना है तो उसको काम करने से मना किया जाता है या इनकार कर दिया जाता है। And it is very important for the women to know what kind of family they are getting into. Other than that, अक्सर हमारी जो बहुत ही ambitious लड़कियां जो होती हैं और who want to be mothers और who want to be the housewives, वो उनका अपना हक है अलग से। बट मैं बात कर रही हूँ उन औरतों की जिनकी एक सपने हैं, जिनके पैशन है, और वो शादी के बाद वो पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि they are expected to be the caretaker or be the mother of the family and take care of the household work. And yeah, generational trauma तो है ही, क्योंकि हम हमेशा डिनर टेबल में मम्मी को सबसे लास्ट में खाते हुए देखते हैं, या फिर हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि जहाँ जहाँ पापा लोग अनकॉन्शियसली या कैसे बोलते हैं अनवांटेडली, नॉट रियलाइजिंग इट, वो लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं अपनी वाइफ्स को। एंड दैट काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट ही वो बुरा लगता है। सो सच वेरी सटल डिसरिस्पेक्ट साइंस ना, वो काफी सिखा देता है लड़कियों को कि नहीं, वी वांट रिस्पेक्ट। और जब लड़कियां रिस्पेक्ट करने लगती हैं तो तभी सिस्टम के अगेंस्ट बोलने लगती हैं। आई थिंक जब हम पेट्रियार्की के बारे में बात करते हैं तो उनको लगता है लोग बहुत गलत समझते हैं। आई थिंक द रियल विक्टिम्स ऑफ पेट्रियार्की आर द मैन। यस, you heard it right. लड़के ही असली victim हैं. Women are the victims of the victim. And you know, according to me, the real villains of the patriarchy are the women who think patriarchy is okay. इस वीडियो में हम एक और पॉइंट के बारे में बात करने चाहते थे, एंड बहुत छोटा पॉइंट है वो, अथॉरिटी का। लड़कों को बचपन से ही बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की और मे बी पता नहीं क्या समाज के ठेकेदारों ने ये सिखाया है that you have to be a man. Now the men do not know that It has never helped them. क्योंकि एक आदमी बनते बनते They have forgotten how to express things, how to feel things. हम अपने मेल फ्रेंड से, पता नहीं बहुत सारे दोस्तों से हम ये सुन चुके हैं कि you know actually what the problem is, I don't know how I feel, and that is actually a problem. इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने बचपन से जो देखा है वही उन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। And even if the boys are trying to
evolve with us, they are not able to, and that is the problem. एंड इफ अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है तो बात अलग हो सकता है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि देयर इज Some kind of superiority between लड़के वाले and लड़की वाले. लड़के वाले somehow feels like they are superior and उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाना चाहिए, उनको बहुत अच्छे से संभाला जाना चाहिए. उनको एक सेंस ऑफ अथॉरिटी पहले ही लगता है कि उनके पास है. नाउ द प्रॉब्लम विद अथॉरिटी इज कि वी एज अ वुमेन ऑफ दिस जनरेशन, हम नहीं चाहते कि कोई हमको आके बोले कि मैंने तुम्हें ये करने का अलाउ किया, मैंने तुम्हें ये पहनने का अलाउ किया. बिकॉज वेन यू अलाउ, यू पुट योरसेल्फ एट सम पोजिशन जहाँ पे तुम कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, और वही चीज हैम्पर करता है हमारे फ्रीडम को. वी एब्सोल्युटली डिनाई टू गिव आवर इंडिपेंडेंस टू anyone. Now कमिंग बैक टू द लड़का वाला एंड लड़की वाला, the लड़का वाला will get the दामाद treatment. तुमको क्यों लगता है कि हर शादी में फूफा क्यों नाराज होते हैं? यार फूफा बदमाश है. क्योंकि फूफा तुम्हारी बुआ के मरते दम तक तुम्हारे घर के दामाद रहेंगे, एंड द दामाद ट्रीटमेंट इज ऑलवेज बिगर देन द बहू ट्रीटमेंट. तो आई एब्सोल्युटली हेट दिस स्टेटमेंट जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, इज दैट कि अरे सर आप चिंता क्यों करते हैं, आपकी बेटी हमारे घर बेटी बन के आएगी. जी नहीं सर. क्योंकि हमारी बेटी हमारे घर पे एक्चुअली बर्तन नहीं मांजती. Whereas women of this age want partnership, want teamwork. They want emotional stability and not just a relationship status. Women do not have the freedom of deciding for their own body, guys. और ये सच है. Please, I do not want any comment saying कि नहीं ये सच नहीं है. Maybe आपकी फैमिली बहुत ज्यादा लिबरल होगी या something, but mostly Indian families are still like that. तुमने रील्स देखे होंगे सच एज घमंडी दामाद, घमंडी जीजा जी. पर एक्चुअली ये सच्चाई है, और तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बहन का पति किसी चीज को लेके ताना दे रहा हो. पता है मोस्टली लड़कियों का खानदान 1000 चीजें सुन लेता है, इसलिए नहीं कि वो स्टैंड नहीं ले सकते, इसलिए कि जब उनकी बेटी वापस ससुराल को जाएगी तो उसको कुछ सुनाया ना जाए. पता है एक बहू से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं, बट एक दामाद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है. इवन इफ मेरे घर में कोई भाई नहीं है और हम लोग 2 लड़कियां ही हैं, फिर भी मेरे पेरेंट्स कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम लोग उनके बुढ़ापे में उनको आके संभालेंगे. ये वो एक लड़की के पेरेंट कभी कुछ एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, ना अपनी बेटियों से और दामाद से तो कभी नहीं. Why our mothers got married at the age of 21 और 22? उसका रीजन ये है कि हमारे माओ के टाइम पे शादी एक सर्वाइवल था, बट नाउ वी नो द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. हम लोग सबको पता है कि हम लोग सर्वाइव कर लेंगे. ऐसा नहीं है लड़के इवॉल्व नहीं होना चाहते, बट उनके जो बिलीव्स हैं और मॉरल्स हैं जो उनके बचपन से वो क्रिएट कराए गए हैं, उनमें वो कहीं ना कहीं आ जाता है. और मे बी कोई लड़का अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा या अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा, तो वो एक सर्टेन वे में इवॉल्व हुआ होगा. आई नो मेनी मेन हु आर वेरी नाइस, हु हैव बिकम सॉफ्टर, हु हैव बिकम वेरी एडजस्टेबल, हु नोज कि घर का काम करना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है. तो देखो इस वीडियो में हम बहुत छोटा छोटा बात बोले हैं, और इस वीडियो के लिए मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं था. जो मेरे दिल का बात था हम वो बोले हैं, और लास्टली हम ये बताए थे कि हम बताएंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा अपना क्या मानना है. आई डू नॉट वांट टू गेट मैरिड, और जो सारे रीजंस हम बताए हैं वही रीजंस हैं मेरे, क्योंकि आई हैव सीन माय पेरेंट्स स्ट्रगलिंग सो मच एंड आई वाज नॉट बोर्न एट द टाइम जब मोदी जी आके बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. हम उस साल में जन्म लिए थे जब मेरे माँ बाप के पास आके लोग बोल रहे थे कि हाँ 2 बेटी ही है. जब लोग पापा के पास आके ये बोलते थे कि बाबू देखो दहेज अभी से जमा करना शुरू कर दो. तो वो सब हम देखे हैं. आई हैव विटनेस्ड इट ऑल. तो मेरे लिए टू बी आउट देयर, टू मेक माई ओन आइडेंटिटी, टू गेट अ जॉब इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन getting married. Talking about my elder sister, see it takes too much to be elder sibling. चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. अगर वो लड़का है तुमको पता होगा that you always have to take care of your younger sibling कि वो सही है कि नहीं. You always have to take the accountability, the responsibility. You know, मेरी बहन क्योंकि वो बड़ी है, she was and she is and she always have been the man of my family. She knows how to take the accountability, the responsibility. She knows कि कौन सा म्यूचुअल फंड में पापा का कितना पैसा है. She knows कि कहाँ पे कौन सा हमारा प्रॉपर्टी है. She knows all of that stuff.
एंड इफ यू आर समबडी मेल जेंडर वाचिंग दिस वीडियो जो एक्चुअली ट्राई कर रहा है खुद से कि आई वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, फॉर माई सिस्टर, फॉर माई वाइफ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर द मैन ब्रेकिंग द जनरेशनल ट्रॉमा। और अगर तुम ये वीडियो देख के ये बोलने वाले हो कि 2-3 फेमिनिस्ट मूवीज क्या देख ली, दिमाग खरी है इन लोगों का, यार तुम भी देख लो, ट्रस्ट मी, you will find your good version after watching that movie. So yeah, and all my female friends जिन्होंने अपने ओपिनियन रखे हैं, जो जिनको शादी नहीं भी करनी है, it's completely fine, और जिनको शादी करनी है, it is completely fine. So yeah, that's it for today's video. ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए सिद्धीज कमेंट्री कैफे के साथ, और if you like watching intellectual content, you can check out my channel. I have made good conceptual videos, so yeah, चल मिलते हैं. And I would also like to say in favor of marriage, because हमारा जो इंडियन सिस्टम है of arranged marriage, वो इतना बढ़िया सिस्टम है कि it is a system that is sustaining India's youth population. It is the system which is avoiding the loneliness between humans, जो अभी जापान जैसी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज जूझ रही हैं, और लो बर्थ रेट एंड लो बर्थ रेट से लड़ रही है साउथ कोरिया। तो इन सब चीज़ों से हमारा इंडिया इस कल्चर के कारण डील कर लेता है, बट यही है कि विमेन की राइट्स को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है शादियों के टाइम, तो इसलिए। देखो, तुमने सवाल पूछा कि व्हाई डू इंडियन वुमेन डोंट वांट टू गेट मैरिड, ठीक है। तुमसे अगर मैं पूछूं कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव अलग होगा, मेरे से पूछा जाएगा तो मेरा अलग होगा। देखो, एक टाइम के बाद ना एक वुमेन को चाहिए होता है, देखो फॉर सपोज इफ आई एम 35, तो व्हाई आई वांट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 35। अरे भाई, 35 में अगर मुझे शादी करनी है, फिर किसी का बच्चा पालना है, ठीक है, अपने पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लड़कियां बोलती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ये इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो वेरी वेल, जब आप शादी करके जाते हो किसी के घर में, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 24/7 की, 365 डेज की, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। उसके मॉम डैड की, उसकी फैमिली की, अपने होने वाले बच्चे की। देखो, उस समय आपको लगेगा यार ठीक है ना, कुछ टाइम ही तो बचा है, मैं अपने हिसाब से जीना पसंद करती हूँ, ठीक। तो ये भी है एस्पेक्ट है कि यार मुझे इस टाइम पे शादी नहीं करनी। हाँ, इफ यू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 23, 24, चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज हो, तो वो आप अपने लाइफ के लिए कर रहे हो, टू स्पेंड माई लाइफ, मतलब अपना एक लंबा समय बिताने के लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप एक एज के बाद शादी करते हो ना, लाइक 28 में, 29 में, 30s में शादी करते हो, तो फिर वो पता है आप क्यों करते हो कि यार शाम को घर आओ ना, तो सुकून से 2 कप चाय में ना प्यारी बातें हो जाए कि क्या किया क्या नहीं किया। अगर मैं रोऊं तो मेरे को ऑटो में ना रोना पड़े, मैं सुकून से एक गाड़ी में रहूं, ठीक। अब इसमें ये नहीं है कि ओ मेरे को तो पैसे से प्यार है, मैं गोल्ड डिगर हूं, नहीं। इंसान एंड ऑफ द डे सुकून तलाशता है। एक टाइम के बाद एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है सुकून, मेंटल सुकून। देखो, एक टाइम में आपकी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, सब कुछ पूरा हो जाता है, फिजिकल अट्रैक्शन एक टाइम बाद सब खत्म हो जाता है। आप आज सुंदर दिखते हो, आप कल सुंदर नहीं दिखोगे, मेरा ये मानना है। देखो, अगर मुझसे कोई बोले कि आप शादी क्यों नहीं करते हो, चलो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, फॉरगेट अबाउट दिस। अगर मुझसे अभी मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं करनी है शादी, तो मेरा सिर्फ एक जवाब होता है मुझे इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अब मुझे किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। मेरा दुख सिर्फ मेरा दुख है, उसे मैं संभाल लूँगी, लेकिन मैं 4 लोगों के और दुख नहीं संभाल सकती, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे को ये बोला जाता है अकेले कैसे रहेगी, अकेले कैसे रहेगी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप अकेले कैसे रहोगे। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता तो वो आपको 15 साल की उम्र में लग जाता, वो अब नहीं याद आता, समझी। दूसरा, देखो, शादी ना करने के रीज़न, देखो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द निबीज जो इंस्टाग्राम के उसमें चलती है, इंस्टाग्राम के फ्लो में चलती है, मुझे उनसे मैं उनकी बात नहीं कर रही। उनका तो ये, अरे उसने नीले ड्रम में बंद कर दिया, उसने मार दिया, ठीक है, वो है। सेम लड़कियों का भी है, लड़कियां भी मारी जा रही हैं, ठीक है, बहुएं भी मारी जा रही हैं, आज भी दहेज चलता है, बहुत जगह चलता है, यूपी में चलता है, बिहार में चलता है, बहुत जगह चलता है। बट हम उस कारण से नहीं शादी करेंगे। शादी ना एक सुकून है, जहाँ इंसान को ना घर जाने का मन करे। और दूसरी चीज़ देखो, ये जो तुमने एक पोस्ट डाला था कि काम करने से बचती है नहीं बचती, काम करने से कोई नहीं बचता। एक लड़के के अगर सर में आ गई,
आन पड़ी वो भी खाना बनाएगा, लड़की भी बनाएगी। और आज के टाइम में जब हम जेंडर इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो हम तो फिर बात ही नहीं कर रहे हैं ना कि भाई हम लड़की या लड़के की बात कर रहे हैं,